और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं केरल, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंचे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। ഈ തവണത്തെ മുദ്രാവാക്യം 400-ലധികം സീറ്റുകൾ എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യമാണ് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपनी हार मान चुका है. अपनी हार तय देखकर वो बौखलाया हुआ है. उसके पास देश के विकास का रोड मैप नहीं है. इसलिए उसने एक ही एजेंडा बनाया है, मोदी को गाली दो. मैं केरला के प्रतिभावान लोगों को जानता हूं. केरला कभी ऐसी नकारात्मक सोच रखने वालों को उनके साथ कभी भी खड़ा नहीं होगा. केरला इस बार राष्ट्र निर्माण के लिए बीजेपी को, एनडीए को आशीर्वाद देगा. यहां बीजेपी जिस तरह पदयात्रा निकाल रही है, जिस तरह सुरेंद्रन जी के साथ लोग सड़कों पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है. केरला का मिजाज ही भाजपा के लिए 370 सीटों के लक्ष्य को आसान बनाएगा. मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं कि आपकी आकांक्षाओं को, केरला के सपनों को साकार करने में मोदी कोई कमी नहीं छोड़ेगा. और ये मोदी की गारंटी है. സുഹൃത്തുക്കളെ, 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രതിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സ്വയം പരാജയപ്പെടും എന്നുറപ്പായ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സമനില തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് മാപ്പും അവരുടെ മുന്നിലില്ല. അവർക്ക് ഒരൊറ്റ അജണ്ട മാത്രമേ ഉള്ളൂ: നരേന്ദ്രമോദിയെ ചീത്ത വിളിക്കുക, ആക്ഷേപിക്കുക. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കഴിവുറ്റ ജനങ്ങളാണ്, പ്രതിഭാധനരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ്. കേരളം ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികൾ, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതികളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരല്ല. കേരളം ഈ തവണ ഈ നാടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കും എൻഡിഎക്കും പിന്തുണ നൽകും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ബിജെപിയുടെ പദയാത്ര, ആ പദയാത്ര നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ പദയാത്രയിൽ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം പദയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആ പദയാത്രയിൽ പങ്കാളികളായത് എന്ന് വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. ആ സന്ദേശം, കേരളത്തിന്റെ ഈ മനോഭാവം, 370 സീറ്റ് എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം, ആ ലക്ഷ്യം എളുപ്പമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ സഫലീകരിക്കാൻ, കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാൻ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്താൻ നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്. അതാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. साथियों, बीजेपी ने कभी केरला को या देश के और किसी राज्य को वोट के चश्मे से नहीं देखा है.
जब बीजेपी यहां कमजोर थी तब भी हमने केरला को मजबूत बनाने के लिए काम किया। इन 10 वर्षों में देश का जो विकास हुआ, जो बड़े फैसले लिए गए, उनका उतना ही लाभ केरला को भी मिला जितना बीजेपी शासित प्रदेशों को। केरला की जागरूक जनता ये सब जानती है और यहां के लोग तो पूरी दुनिया में है। आज विश्व में भारत का बढ़ता हुआ कद, उसने केरला के लोगों में एक नया आत्मविश्वास भरा है। गल्फ के देशों में रहने वाले मेरे भाई बहनों ने अभी हाल ही में अनुभव किया है कि तब के भारत और आज के भारत में कितना फर्क है। 2024 का चुनाव इस नए भारत को और आगे लेकर जाने का चुनाव है। സുഹൃത്തുക്കളെ, ബിജെപി ഒരിക്കലും കേരളത്തോടുള്ള ഒരിക്കലും വിവേചനം കാണിച്ചിട്ടില്ല. അഥവാ രാജ്യത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തോടും വോട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെയും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കണ്ടിട്ടില്ല. ബിജെപി വളരെ ദുർബലമായിട്ടുള്ള പാർട്ടിയായിട്ടിരുന്ന കാലത്തും കേരളത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബിജെപി പങ്കാളികളായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതി, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള വിവിധ തീരുമാനങ്ങൾ, ആ തീരുമാനങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രയോജനം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്, ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ അളവിൽ കേരളത്തിനും കിട്ടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ അറിവുള്ള ജനങ്ങൾ, ആ ജനങ്ങൾക്ക്, വിവേകശാലികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല, രാജ്യം മുഴുവൻ, ലോകം മുഴുവൻ, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഇന്ന് ലോകത്ത് ഭാരതത്തിന്റെ ഉയർന്നു വരുന്ന സ്ഥാനം, ആ സ്ഥാനം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഒരു പുതിയ ആത്മവിശ്വാസം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കേരളത്തിലെ സഹോദരന്മാർ, അങ്ങനെയുള്ള സഹോദരന്മാർ അവർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അത് അനുഭവിച്ചു. പണ്ട് കാലത്ത് ആ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു, ഇനി ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്ഥിതി എങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് 2024 ഈ വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യയെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ട് മാറും. साथियों, आज देश में मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा. इदाणु मोदीयुडे गारंटी. हमारे तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार से हमारी लड़ाई और तेज होगी. भ्रष्ट लोग कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे. इदाणु मोदीयुडे गारंटी. हमने पहले ही 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और अब तीसरे कार्यकाल में कई करोड़ भारतवासी गरीबी से बाहर आने वाले हैं. इदाणु मोदीयुडे गारंटी. साथियों,
केरला में सबको ये पता है कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने केरला में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत की है। सबको पता है कि केरला के मेरे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों को हायर एजुकेशन में कितनी दिक्कत आती है। हमारा तीसरा कार्यकाल केरला में शिक्षण संस्थानों की स्थिति को और अच्छा करने पर केंद्रित होगा। इससे हमारे सामान्य परिवार के बच्चों के लिए नए रास्ते बनेंगे। इदाणु मोदीयुडे गारंटी। हमारा तीसरा कार्यकाल सेमीकंडक्टर से ग्रीन हाइड्रोजन तक तरक्की के नए क्षेत्र खोलने का कार्यकाल होगा। इससे केरला के नौजवानों के लिए नौकरियां और रोजगार के लाखों अवसर बनेंगे। इदानी മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം മോദിയുടെ മൂന്നാം സർക്കാർ, ആ സർക്കാരിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിരവധി തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. तो आप केरल से सुन पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। एसपी एमएलए पल्लवी पटेल का क्रॉस वोटिंग से इनकार, हमने समाजवादी पार्टी को दिया वोट। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एसपी एमएलए पल्लवी पटेल ने किया क्रॉस वोटिंग से इनकार, पीडीए के लिए समाजवादी पार्टी को किया वोट। पल्लवी पटेल का यह बयान सामने आया है। लगातार राज्यसभा के चुनाव को लेकर अटकलें तमाम तरीके की लगाई जा रही थी, लेकिन इसी बीच पल्लवी पटेल का जो बयान सामने आया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि क्रॉस वोटिंग नहीं की है, पीडीए के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि हमेशा से पीडीए के लिए खड़ी रही है, पीडीए हैं। पीडीए मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए है। मैं पीडीए हूँ, मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं। मैंने शुरू से पीडीए की बात की और मेरा वोट भी आज पीडीए के लिए है। मैंने पीडीए की बात हमेशा की है, लड़ कभी की है, विनम्रता से भी की है, आगे भी करूंगी, आज भी कर रही। पीडीए मेरा वजूद है और मैं पीडीए हूँ। लोकसभा का निर्णय होना भी बाकी है। आज वर्तमान में राज्यसभा की बात होनी चाहिए और पीडीए के लिए प्रतिबद्धता है और पीडीए के साथ। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता रमन मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। जी रमन, जिस तरह से पल्लवी पटेल ने क्रॉस वोटिंग से इनकार किया है, अटकलें तमाम तरीके की लगाई जा रही थी, लेकिन साफ कहना है कि पीडीए के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। बिल्कुल प्रियंका जी, जब से समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा सीटों के लिए प्रत्याशी बनाया था, उसके बाद से ही सपा विधायक पल्लवी पटेल ने मोर्चा खोल दिया था समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ। उनका कहना था जो पार्टी और जो नेता पीडीए की बात करता है वो अगड़ों को कैसे टिकट दे सकता है। और उसके बाद से आज तक, और यही नहीं दोपहर तक, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पल्लवी पटेल क्रॉस वोट कर सकती हैं या तो वोट नहीं करेंगी। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव ने भी एक बयान में कहा, जब उनसे पूछा गया कि पल्लवी पटेल अभी वोट देने नहीं आई हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा हो सकता है उन्होंने भी अंतर्मन की आवाज सुन ली हो। लेकिन कुछ ही देर बाद पल्लवी पटेल विधानसभा पहुंची और उसके बाद में वोट देकर निकली, तो उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि उनका वोट पीडीए का है और वो खुद पीडीए हैं और पीडीए के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी वो कहीं उस पर विराम लग गया है और पल्लवी पटेल ने ये कहकर कहीं ना कहीं एक बड़ी लकीर खींची है कि वो कहीं ना कहीं आज भी मिशन और विचारों की राजनीति करती हैं। जी वही बात करें, जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरह से पल्लवी पटेल ने ये कहा है कि उन्होंने पीडीए के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, लंबे समय से राज्यसभा के कैंडिडेट्स को लेकर भी पीडीए को पर वो सवाल उठा रही थी, क्या ये माना जा सकता है कि अब बचे हुए जो लोकसभा के टिकट्स हैं उस पर तमाम नेताओं को लेकर, पीडीए को लेकर ज्यादा दबाव बनाया जाएगा समाजवादी पार्टी पर और सपा सुप्रीमो पर?
बिल्कुल, पहले भी समाजवादी पार्टी में जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर अगड़ों के मताहत करने पर इल्जाम लगाते थे, उसका विरोध करते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब फरसा अखिलेश यादव ने पकड़ा तब भी उनका काफी हद तक उन्हें इसका विरोध झेलना पड़ा था। अब ऐसे में बड़े नेता मनोज पांडे, राकेश सिंह, अभय सिंह, वही राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी जैसे जब लगभग 7 से 8 लोगों के खबर है कि क्रॉस वोटिंग की है, जिसमें से 5 नाम जो हैं वो अगड़े समाज से आते हैं, तो क्लियर कहीं ना कहीं है कि अब बात जो पीडीए की ज्यादा होगी। जो अखिलेश यादव के मन में कहीं ना कहीं ये रहता था कि हमें अगड़ों को भी हिस्सेदारी देनी होगी, तो अखिलेश यादव अब कहीं ना कहीं सफाई दे सकते हैं कि जो जिन अगड़ों को वो बनाते हैं वो अगड़े कहीं ना कहीं उनके खिलाफ हो जाते हैं। जी बिल्कुल, लगातार तो जिस तरह से पीडीए को लेकर साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का कहना था कि पिछला, दलित और अल्पसंख्यक के साथ ही साथ अगड़ा जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस रणनीति के बावजूद मंदिर पूजन किया, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से अगड़े टिके नहीं है, क्या रणनीति में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है चुनाव से पहले? बिल्कुल, रणनीति तो अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दी है। अगड़ा वो अगड़ों को जोड़ने के लिए एक लॉलीपॉप दे रहे थे, लेकिन पीडीए का जो वास्तविक जो फुल फॉर्म है वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ही था, उसमें अगड़ों की कोई जगह नहीं थी। हालांकि कई अगड़े नेता उनके पार्टी में थे और तमाम अगड़े कार्यकर्ता हैं जिनको वो अपना समर्थन देने के लिए ऐसा बयान देते थे, लेकिन उन्होंने आज अभी कुछ ही देर पहले सियासत का खेल खेल रहे अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं हार मान ली है, क्योंकि उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर अभी ट्वीट किया है और लिखा है कि जो तीसरी सीट को लेकर जो चुनाव था वो सच्चे समाजवादियों को परखने के लिए था, और जो लोग दिल से पीडीए को चाहते हैं और जो अंतर्मन से पीडीए को चाहते हैं उनकी परख करने के लिए एक हिसाब से उन्होंने तीसरी सीट के चुनाव को एक लिटमस टेस्ट के रूप में ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि जो अच्छे लोग थे वो क्लियर हो गए, जो बुरे लोग थे उधर चले गए हैं, और यही तीसरी सीट की जीत है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में अब उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा जरूर किया, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का एक बयान भी सामने आया था कि जो कद्दावर नेता थे वो कद्दावर बन नहीं पाए, और उसके बाद डरा धमका कर इतनी हिम्मत नहीं थी, यही वजह है कि पाला बदला गया है। उसके बाद में क्या लग रहा है आपको कि अभी तक जितने पाले बदले गए हैं, क्या ये सिलसिला आगे भी लोकसभा चुनाव तक जारी रह सकता है? क्योंकि बीजेपी के भी कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, चर्चा पहले से ही थी कि बहुत से नेता 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के नाव पर सवार होंगे। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद से ही मनोज पांडे की भाजपा में जाने की चर्चाएं चल रही थी, और उसके बाद जब स्वामी मौर्य से विवाद बढ़ा तो और लग रहा था कि मनोज पांडे जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, लेकिन स्वामी मौर्य के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद में इस बात पर विराम लगा था। वहीं राकेश सिंह की बात करें, अभय सिंह की बात करें, तो ये भले विरोध विपक्ष के विधायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्र में मैसेज है कि इनकी सत्ता से सेटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि राकेश सिंह का एक विवाद आया था जो थाने में पिस्टल या हथियार निकालने वाला, वहीं अभय सिंह से भी कई ऐसे जुड़े किस्से हैं। ऐसे में इन लोगों का पहले से कयास लगाया जा रहा था, लेकिन राज्यसभा चुनाव में अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में और बड़े तादाद में ऐसे विधायकों की क्रॉस वोटिंग करना और साथ में जाना बड़ा इशू बन गया। हालांकि अभी तमाम ऐसे नेता हैं जो, क्योंकि इन विधायकों को वोट देना था इसलिए विधायक पहले नाव पे सवार हो गए, कहीं ना कहीं कोई अच्छी बात होके, डील होके, और वही जो नेता दूसरे पदों पर हैं या पार्टी के पदों पर हैं उनकी अलग तरीके से अलग टेबल पर बात होगी, अलग शर्तों पर बात होगी। जी आपको ये भी बता दें कि अभय सिंह, राकेश सिंह सभी लोगों ने अपने फेस, और मनोज पांडे सभी ने फेसबुक प्रोफाइल भी चेंज कर ली है। जी बिल्कुल अभय सिंह और राकेश। रमन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, केजरीवाल को ईडी का 8वां समन। केजरीवाल को ईडी का 8वां समन। शराब घोटाले में केजरीवाल को मिला है समन। 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया। केजरीवाल को ईडी का 8वां समन। शराब घोटाले में केजरीवाल को समन, 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 8वां समन केजरीवाल को ईडी के द्वारा दिया गया है। लगातार 8 समन मिलने के बावजूद दिल्ली की सीएम
अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए हैं। एक बार फिर से 8वां समन सामने आया है। 4 मार्च को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। देखना यह होगा कि क्या एक्शन यहां पर सीएम की तरफ से लिया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।